لیے میں نے ایک ایڈ پڑھا پیپر میں، تو میں چلا گیا انصاف کے گھر کے، مجھے گھر چاہیے تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ شادی سے جائیں، میں نے کہا جی نہیں ابھی تو نہیں، تو انہوں نے کہا جی سوری ہم آپ کو گھر بھیج دیتے۔ پھر دوسرے دن جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے گھر دے دیا۔ دوسرے دن آپ گئے تو انہوں نے گھر بھیج دیا، یہ کیا بات؟ بس میں اپنے ساتھ محمد علی شیخی کو لے گیا تھا۔ صاحب امجد حسین بہت اچھے گلوکار ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں، بحفاظت اپنے والدین کو ملک میں بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے والد صاحب کا خط انہیں موصول ہوا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہاری بھیجی ہوئی مینا مل گئی، بہت لذیذ تھی۔ او ہو جمشید، وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اللہ کا شکر سلیم۔ بھابھی آپ کو عید مبارک۔ آپ کو بھی جمشید ایک بات بتاؤ، بھابھی کی کون سی عادت تمہیں اچھی لگتی؟ ان کا بھول پن یعنی؟ ہوا یہ سلیم کہ ایک دن میں آفس جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، تو میں نے کوٹ کی جیب میں دیکھا کہ کچھ پیسے میرے گائے، تو میں نے شاہین سے پوچھا شاہین یہ میری جیب میں کچھ پیسے تھے کہاں چلے گئے؟ تو ایک دم یہ برف پڑی، یعنی کمال کرتے ہیں آپ بھی، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، میں نے تو آپ کے پیسوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، میں نے تو ہاتھ تک نہیں لگایا، آپ کمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ناراض مت ہو شاہین، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، چلو اگر تم نے نہیں لیے تو کوئی بات نہیں، میں فال نکلوا لیتا ہوں۔ ایک دم یہ میرے سامنے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں فال نکلوا لیتا ہوں، جس میں پیسے لیے وہ پتہ چل جائے گا۔ چلے 150 روپے کے لیے فال نکلوائیں گے۔ اچھا بھابھی آپ یہ بتائیں کہ جمشید کے کرداروں میں آپ کو کون سا کردار زیادہ پسند؟ مجھے ان کا ذاتی کردار زیادہ پسند ہے۔ میں ان کے ڈراموں کے کرداروں کی بات کر رہا ہوں۔ حسنات بھائی بھائی کیا ہو گیا ٹائم میں اس لیے آیا تھا تمہیں یہاں پر، یہ آپ بھی کمال کرتے ہیں سلیم صاحب۔ بھائی نہیں جمشید سمجھے نہیں، کیا سمجھے؟ وہ آپ کے ڈرامے کی بات کر رہی ہیں، انکل عرفی کی، حسنات بھائی۔ او حسنات بھائی، کمال کرتے ہو جمشید، بھابھی نے حسنات بھائی کہہ دیا تو ناراض ہو گئے۔ یہاں پر 3 بہنیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جو بینجمن سسٹرز کہلوانے پر کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، عید مبارک آپ کو۔ عید مبارک۔ یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہاں سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ گانا سنا جائے، کیا خیال ہے؟ کوئی گانا سنائیں گے آپ؟ ایک بات مجھے یاد آئی، یہ تینوں ایک ساتھ بولتی ہیں آپ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگے پیچھے ہو جائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا؟ اچھا گھر میں اگر کوئی گلاس ٹوٹ جائے یا جگ ٹوٹ جائے اور آپ کی امی کہیں کہ یہ کس نے توڑا ہے پھر؟ ہو گئی نہ لگا بس، تشریف لائیے۔
बहुत बहुत शुक्रिया बेंजामिन सिस्टर्स आपका, खूबसूरत नगमा सुनाया आपने। दोस्तों, यहाँ एक साहब बैठे हैं और मेरा जी चाह रहा है कि आज जो कुछ नगमे आपने सुने हैं तो उस शायरी के बारे में मैं उनसे कुछ बातचीत करूं। आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, आपने प्रोग्राम देखा, गीत सुने, मौसीकी सुनी, प्रोग्राम कैसा लगा आपको? शायरी कैसी लगी आपको? शायरी ही तो है इसमें बस, और मुझे कुछ फीकी फीकी सी लग रही है। शायरी मेरी अपनी शायरी है। अच्छा, आपकी शायरी है, लेकिन नगमे आपने लिखे हैं, बहुत खूबसूरत थे। क्या बात है। अरे तहसीन, कहाँ रह गए थे भाई? बस कुछ मेहमान आ गए थे घर में, इस वजह से देर हो गई। अच्छा, अब अगर देर हो गई है तो तुम्हारी सजा ये है कि आते ही स्टेज पे चढ़ जाओ और एक खूबसूरत सजा। सवेरे प्यार में तेरे गीत खुशी को। तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आपने तहसीन से एक खूबसूरत नगमा सुना। बहुत अच्छा फनकार है, बहुत अच्छा दोस्त है। आजकल एक सीरियल चल रहा है सीढ़ियाँ, इसकी एक फनकारा यहाँ बैठी हुई हैं अपने शौहर के साथ। तारिक इनके शौहर का नाम है, जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से मुताल्लिक हैं। आइए इनसे बात करते हैं। रुबीना, क्या हाल है आपके? आप सुनाइए। सुना है आजकल आप खट्टी मिट्टी गोलियां बेच रही हैं। जी हाँ, हैं? ठीक गोलियां दे रही हैं। तारिक, आपका ताल्लुक तो एडवर्टाइजिंग से है, आपका ताल्लुक फाइन आर्ट से। आप तारिक का हाथ क्यों नहीं बताते? अभी तो आजकल तारीख मेरा हाथ बता रहे हैं किचन में, यानी कि ये किचन में फिर मैं इनका हाथ बता दूंगी। आप एडवर्टाइजिंग में इनका हाथ बटाएंगे। माशाल्लाह, अल्लाह करे कि आप तमाम उम्र सारी जिंदगी इसी तरह एक दूसरे का हाथ बटाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आज जब मैं इस प्रोग्राम के लिए घर से निकला और यहाँ आने लगा तो रास्ते में मुझे एक कांस्टेबल ने पकड़ लिया। पिछले दिनों एक मैंने कॉमेडी शो देखा था जिसमें एक आर्टिस्ट को जब कांस्टेबल रोका करता था तो एक नाम लिया करता था और वो कांस्टेबल उस नाम में उलझ जाता था और ये आर्टिस्ट निकल जाया करते। तो वही तरकीब मैंने भी आजमाई और मैंने भी नाम लिया मुस्तनसर हुसैन तारड़। वो वहीं फंस गया, मैं निकल के इस शो तक आ गया। आज इस शो में वो आर्टिस्ट हमारे सामने बैठा हुआ है, अशरफ खान। इनके साथ आफरीन को आपने देखा होगा, पिछले दिनों एक और शो चल रहा था, यस सर नो सर, उसमें इनका किरदार वाज़ेह था। आइए इन दोनों से मिलते हैं। अशरफ, आपके बारे में सुना है कि आप अदाकार होने के साथ साथ गुलकार भी बहुत अच्छे हैं। सही सुना सलीम भाई आपने। तो कोई गाना आप सुनाएंगे? गाना मैं जरूर सुनाऊंगा। उससे पहले मुझे एक लतीफा याद आ गया, अगर आप सुनना चाहें तो सुना दीजिए। सुन लीजिए फिर। एक बार ऐसा हुआ कि एक गुलकार स्टेज पर गाने के लिए गए। आपने अमूमन देखा होगा जब गुलकार गाना शुरू करता है तो उससे पहले साजिंदे साज मिलाते हैं, साजों को सुर में लाते हैं। जी। वो गाने के लिए खड़े हो गए, साज मिलने लगे। काफी देर हो गई, सब साज मिल गए। इधर एक सारंगी नवाज बैठे हुए थे, बड़े मियाँ, बहुत बड़े खासा थे। बहुत देर से सारंगी मिलके नहीं दे रही थी। गुलकार बहुत नाराज हुए, कहने लगे क्या हो गया बाबा जी आपको, सारे साज मिल गए, आपकी सारंगी सुर में ही नहीं आ रही। कहने लगे बेटा सारंगी सुर में है, मैं तो कोशिश करके बेसुरी कर रहा हूँ कि तुम्हारा साथ तो दे। यानी ऐसा हुआ। इस बारे में आप क्या कहती हैं? आपने सलीम भाई, दरअसल ये लतीफा नहीं था, ये वाकया इन्हीं के साथ पेश आया है। यानी वो गुलकार यही थे। वैसे इनके साथ ऐसे कई वाकया पेश आ चुके हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। एक महफिल में फनकारों के आने में कुछ देर थी तो साहिबा खाना ने अशरफ साहब से दरख्वास्त की कि जब तक आप हमें कुछ गजलें ही सुना दें। तो अब अशरफ साहब जब बदहवासी के आलम में स्टेज पे चढ़े तो इनका जूता पैर से निकल गया। तो इन्होंने ऊपर से आवाज लगाई कि भाई जरा मुझे जूता तो देना। तो सामने में आवाज आई, आप गाना तो शुरू करें, ऐसे बहुत से आ जाएंगे। अच्छा,
मजाक उड़ा लिया ना मेरा है। सलीम भाई, चूंकि ईद का मौका है और मुझे एक लतीफ़ा ईद के हवाले से याद आया है। दोस्तों, सलीम भाई का लतीफ़ा है, अगर आप कहें तो सुनाओ। इजाज़त। कल जब सलीम भाई घर गए तो इन्होंने अम्बरीन भाभी से पूछा कि क्यों अम्बरीन, तुम डॉक्टर के पास गई थी? अम्बरीन भाभी कहने लगी, हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर कहने लगे, अम्बरीन आप तो बहुत कमज़ोर हो रही हैं, बहुत पीली से हो गई हैं, वीक हो गई हैं, आप बिल्कुल दिल पे कोई गम न लिया करें, बल्कि आप खुश रहने की कोशिश किया करें। आप ऐसा करें, बल्कि आज ही ऐसा करें कि आप बाजार जाएं, वहां से जाके बहुत सारे जूते, कपड़े, जेवर, चूड़ियां, ये सब चीजें खरीदें। और ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप आज ही बाजार जाइएगा। अब सलीम बताओ ना क्या करें? सलीम भाई कहने लगे कि अम्बरीन जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्बरीन भाभी कहने लगी, अल्लाह आपको जिंदगी दे सलीम, आप कितने अच्छे हैं। अब हम शॉपिंग करने कहाँ जा रहे हैं, कौन सी मार्केट में जा रहे हैं? तो सलीम भाई ने पता क्या कहा? कहने लगे, हम मार्केट में नहीं जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने फनकार दोस्तों से मोहम्मद अली आरिफ, तहसीन और बेंजामिन सिस्टर्स से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो एक नगमा पेश करें।